Hello students, now we will start our next chapter, chapter number 4, motion in a plane. Motion in a plane means motion in a surface. Basically, motion in a plane is a two-dimensional motion. Okay, we have studied the motion in a straight line when an object moves in a straight line. So that is called the rectilinear motion or motion in a one dimension. Now next we will study the motion in a two dimension and that is called the motion in a plane. Okay. Now in this chapter about the motion in a two dimension, we will study the projectile motion as well as the uniform circular motion. Okay, projectile motion is the type of two dimensional motion. Uniform circular motion, it is also type of two dimensional motion. Okay, that we will study. But before that we have to study about the vectors. हमको पूरा वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है. ओके, कि वेक्टर्स क्या होते हैं. ओके, यू नो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. Okay, so scalar quantity, what are scalar quantities? Scalar quantities are those quantities which have only magnitude and no direction, and vector quantities which have magnitude as well as the direction. So that quantities are vector quantities. This is like examples. We have the scalar quantities. We have example time, then mass, then speed. Okay, volume, density, and many more quantities are there which are scalar quantity. Vector quantities we have velocity, displacement, acceleration, force, okay, torque, that we are going to study in the previous in the coming chapters. Okay, so ये जो होती है vector quantities होती है. Now what is the vector algebra? What is the vector algebra? Vector algebra means how to add, multiply, subtract or divide the vector. बेसिकली हम एल्जेब्रा जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. दिस वी स्टडी इन मैथमेटिक्स. ओके, नाउ इन द स्केलर क्वांटिटीज वी कैन डायरेक्टली ऐड. ओके, स्केलर क्वांटिटीज में जैसे आप 2 and 2 है वो 4 होगा, 3 और 3 है 6 ही होगा वो. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में 2 और 2 4 हो जाए ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट 2 and 2 4 या 2 multiply 2 4, 2 multiply 3 is 6, because vector contains the direction. So we have to see in which direction. Okay, the two forces 10 Newton and 10 Newton, not always 20 Newton. It may be 20 Newton, but it may not be 20 Newton. It may be 0 Newton also, depending upon the direction. So for that, a different type of algebra, different type of mathematics has developed, and that we call as the vector algebra. Okay, when we apply the algebra or mathematics to the vector quantities, that is called the vector algebra. Okay, तो ये सब हम इसमें चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे. जैसे आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटीज which have the magnitude. So what are scalar quantities? In very short we will study scalar quantity. The quantities which have only magnitude. वो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. एंड वेक्टर क्वांटिटीज द क्वांटिटीज which have magnitude and मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स एनी वैल्यू. मैग्नीट्यूड मतलब किसी कोई वैल्यू. ठीक है, जैसे अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो ये क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया, एक वैल्यू हो गई, एक नंबर हो गया. ठीक है, अगर वॉल्यूम जो है उसका मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है या 100 मीटर क्यूब है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जिसके पास होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है तो दैट वी कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी. सो वी विल बेसिकली फोकस ऑन द वेक्टर क्वांटिटी. ओके, now we will study the vector quantities, and we will study the types of vector. So first of all, how a vector quantity is represented, how a vector is represented. So that representation of vector. ठीक है,
कोई भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो। ओके, रिप्रेजेंट वेक्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है इसमें, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ये बताता है आपको डायरेक्शन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है जैसे ए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है ए और उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा है तो दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी है बी, उसके ऊपर अगर वेक्टर का साइन लगा हुआ है तो दैट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से दिस इज द साइन ऑफ अ वेक्टर। ओके, दिस इज द साइन ऑफ वेक्टर, इट हैज द लेंथ एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ होती है और ये क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है? वेक्टर का आपका साइन होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये जो पीछे वाला होता है इसको हम बोलते हैं टेल और इसको हम बोलते हैं हेड। दिस इज नोन एज टेल एंड दिस इज नोन एज द हेड। ओके, दैट वी विल स्टडी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ क्वांटिटी। ओके, पोजीशन वेक्टर एक क्वांटिटी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस ओरिजिन इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, दिस इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल P जो है वो यहाँ पर है। ओके, तो हम क्या करेंगे? और वी हैव टू लोकेट दिस पोजीशन। हमको ये पोजीशन को क्या करना है? लोकेट करना है, बताना है। तो वी विल ड्रॉ अ वन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। हमने क्या करा? एक वेक्टर डाला कहाँ पे? P पॉइंट पे। तो ये वाला जो वेक्टर होगा दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन एंड वी विल ड्रॉ इट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसमें डेफिनेशन ज्यादा नहीं है, आपको डायग्राम से ही समझना। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो P पॉइंट पे है, मान लीजिए P1 पॉइंट पे है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो P2 पॉइंट पे है। तो हम क्या करेंगे? ओरिजिन से P1 पे और P2 पे दो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। we will draw two position vector. Now the position of P1 और P2, P1 और P2 के बीच की जो पोजीशन है इसको हम बोलेंगे, इसको हम एक और वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस वी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम ही है, तो दो पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल P1 से P2 पे आया, ठीक है, P1 से P2 पे आया, तो P1 से P2 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमने क्या करा? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया। ठीक है, अब P1 से P2 पे बना सकते हैं, P2 से P1 पे बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट P2 से P1 पे गया है तो एरो इस डायरेक्शन में होगा, P1 से P2 पे गया है तो इस डायरेक्शन में होगा एरो। ठीक है, यहाँ एरोस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में गया है, इट मे बी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। So displacement vector is basically represent the difference in the two position of the object. Okay. Now we have some other vectors also. Third, equal vectors. What are equal vectors? When the two vectors are equal. Suppose I have drawn a one vector that is A vector and I have drawn the another vector that is the B vector. So is these two vectors are equal, A and B? Yes, because their magnitude and direction are same and direction are same.
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो उस केस में ये जो होंगे ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। दिस टू आर द इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द इक्वल वेक्टर। अगर यहाँ पे मैंने बी को इस तरह से बना दिया, मान लीजिए ये बी, तो अब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे, नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड एज द अनइक्वल वेक्टर्स। ये अनइक्वल हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज द अनइक्वल वेक्टर्स बिकॉज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। और अगर यदि मैंने यहाँ पे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, दिस is in this direction and this is in this direction, so these two are not called as the equal vectors because the direction are different। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए ये जो वेक्टर्स होंगे these are not called as the equal vectors, ठीक है। तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो गए, ये अनइक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। देन अपोजिट वेक्टर, opposite vector means if you have a vector in this direction and b vector in this direction, then these two are called as the opposite vector। ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये दो वेक्टर होंगे अपोजिट वेक्टर, दे आर अपोजिट वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या नहीं हो, ओके, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो, ये जो कहलाएंगे दैट आर कॉल्ड एज द अपोजिट वेक्टर्स, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अपोजिट मीन कि एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, एक अप जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, ठीक है। अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, तो दे आर नॉट कॉल्ड एज द अपोजिट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। फॉर दैट द एंगल शुड बी 180 डिग्री। अपोजिट कब होगा, अपोजिट होगा तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ओके। तो दिस आर नोन एज द अपोजिट। Then you have parallel vectors। Two vectors are parallel, they are having magnitude and direction parallel to each other, means ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। अब आप बोलेंगे ये तो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे ये मैंने ए वेक्टर लिया और ये मैंने आपका बनाया बी वेक्टर। अब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है, नहीं है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर इधर जा रहा है, सॉरी, इक्वल वेक्टर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बट इज दे कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर्स, यस दे आर पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। भले ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे दोनों का अलग है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दे कैन कॉल द इक्वल वेक्टर एज वेल एज द पैरेलल वेक्टर्स। बट हियर if the magnitude are different then they are called only the parallel vectors, ठीक। अब यदि यहाँ पे इसका मैं डायरेक्शन इधर कर दूं, अच्छा पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उसमें एंगल होगा 0 डिग्री, ठीक है। हम ये यूज करेंगे आगे कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है तो उन दोनों एक दूसरे से कितने का एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का, ठीक है। अब एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो दे आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल वेक्टर, एक दूसरे से अपोजिट है, तो दे आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अपोजिट वेक्टर, we can call it as a opposite vector also and they are called the anti parallel vectors also, ठीक है। then next we have negative vector। नेगेटिव वेक्टर, व्हाट इज द नेगेटिव वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, और इसका अगर बिल्कुल अपोजिट कोई वेक्टर बनता है, इसका कोई अपोजिट एक वेक्टर बनता है, तो हम उसको लिख सकते हैं -e। अपोजिट वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ दिस, समझ में आया। आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स में क्या फर्क है,
जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि अपोजिट, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आर द अपोजिट वेक्टर, यहाँ दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है। पर नेगेटिव वेक्टर्स कब कहलाएंगे, जब ये वाला जो वेक्टर है इसका अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे मैंने बी वेक्टर नया वेक्टर नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन एनी न्यू वेक्टर इन दिस केस, ठीक है। तो यदि मैं ए वेक्टर का ही अपोजिट वेक्टर बनाता हूँ, कोई दूसरा वेक्टर नहीं बनाना है, इसी का मैंने क्या करा, एक अपोजिट वेक्टर बनाया, तो दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द माइनस ऑफ ए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये कहलाएगा इसका नेगेटिव ऑफ ए, so that is called as the negative vectors. Okay, now we have two more vectors. Next one is the unit vector. This is a very important vector, that is the unit vector. अब unit vector क्या होता है कि जिसका magnitude जो होता है वो 1 होता है, the vector having magnitude 1, unity, the vector having magnitude unity, unity का मतलब होता है यहाँ पे 1। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ और ये 1 आता है, इसका आंसर यदि 1 आता है तो ये क्या कहलाएगा, एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड यदि 1 आता है तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। अब जो आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 3 एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। जो एक्सिस होती है वो जनरली ऐसी होती है, दिस इज द जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो जेड एक्सिस इज लाइक दिस, बट वी कैन नॉट मेक इट ऑन द बोर्ड बिकॉज बोर्ड इज अ 2 डायमेंशन। जैसे मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो है बोर्ड है, मोशन इन ऑन द बोर्ड इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। हम केवल ऐसे जा सकते हैं, एक्स में जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड में हम नहीं जा सकते, वी कैन नॉट मूव इनटू द जेड। सो मोशन इन ऑन द बोर्ड इज द मोशन इन अ प्लेन, सरफेस पे जो मोशन कर रहा है, ओके। तो ये जेड एक्सिस को हम इस तरह से बनाते हैं। अब हर जो तीनों एक्सिस होती है इसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड होता है। एक्स के लिए हम यूज करते हैं आई कैप, वाई के लिए जे कैप एंड जेड के लिए के कैप। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। दिस 3 आर द यूनिट वेक्टर्स। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए आई कैप, ठीक है, इफ आई हैव रिटन द ए आई कैप, okay, if I written a I cap, so what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो a वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, I डायरेक्शन में, a वेक्टर इज इन I डायरेक्शन, ओके। इफ आई रिटर्न a वेक्टर, हाँ यहाँ पे आप चाहो तो वेक्टर साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि आई कैप ये बता रहा है कि आपका जो a है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन, दैट रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन, ओके। प्लस जैसे बी जे कैप, इसका मतलब क्या होगा, बी जो है वो जे में है, प्लस सी के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए एक्स डायरेक्शन में है, बी वाई डायरेक्शन में है और सी जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई टू एनी क्वांटिटी। अच्छा, जितनी क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1, और जो भी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक। तो यहाँ पर 3 यूनिट वेक्टर्स आई के, जे के, के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि
x के साथ, y के साथ, z के साथ कौन से यूनिट वेक्टर एसोसिएट होते हैं? यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हम किसी भी क्वांटिटीज को डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, then we have one more vector, zero vector. Zero vector. Zero vector क्या होता है? The magnitude of these vectors are जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया और इसका मैग्नीट्यूड यदि जीरो आ रहा है तो ए वेक्टर क्या कहलाएगा? एक जीरो वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या कहलाएगा? एक जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर, ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है, दिस इज नोन एज द जीरो वेक्टर। Now these are the types of vectors that we have studied. Okay. Okay. Next, in the next slides, we will study the addition of vectors, and in further slide, we will study the multiplication of vectors. Thank you.